Okay, my dear student, today we are going to read the Bhakti Sufi traditions. As you have seen my previous video, I have already discussed about that the various important points in this chapter. This is very interesting chapter, and I hope you can have read that what is the meaning of Bhakti, types of Bhakti, features of Bhakti, and Sufi traditions also. What is the meaning of Sufism? What is tasawwuf and such type of other things I have already discussed on your online video classes. And in my online classes, I have also discussed all that points. I have discussed the Sufism. I have discussed Bhakti. I have discussed the integration of cult. I have already discussed the Saiv, Alwar and Vaishnava Nainars. And I have discussed what is the meaning, why they emerged in India. Dear students, as you know that the Bhakti first time emerged in southern part of India, and the Bhakti, it comes from South to India, South India to North India. The prominent saints belongs to the Seven Anar and Vaishnava Alwar. They play a very important role. They oppose all the discriminatories, all the extreme practices of the society. They denied that the supremacy of the text, supremacy of the caste. They also oppose the discrimination behalf of the race, behalf of the varna. Dear student, this is very important things that you have to understand. Integration of cult. If you remember the integration of cult, I have already taught you that समन्वय दोनों के बीच, it means the upper class beliefs and the lower class beliefs, their faith, beliefs it means the religious faith and beliefs. Both class accepted their faith and belief without any hesitation. This is the finest example you have seen the Puri Jagannath Rath Yatra. You have seen their sculpture. जगन्नाथ की प्रतिमा लकड़ी से बनती है, बलभद्र और सुभद्रा के साथ वो यात्रा के लिए निकलते हैं। लकड़ी की बनी हुई प्रतिमाएं, ये लिटिल ट्रेडिशंस की चीज़ें थी, इसको एक्सेप्ट किया अपर ट्रेडिशंस से विदाउट एनी हेजिटेशंस। एंड तांत्रिज्म पे भी हमने बात की थी। वी हैव डिस्कस द तांत्रिक प्रैक्टिसेस इन इंडिया। इन द तांत्रिज्म, एज यू नो दैट द वुमेन गॉडेस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. They had very important role. And all of these, their main aim to unite the India. If you have minutely observed about the chapter, the headings, the Bhakti Sufi tradition from 8th to 18th century, it means 8th to 18th century, that is the very critical. On that time, there are so many outsider attack on India. They try to invade us. It is the attack of the different culture on Indian culture. That's why this is the difficult situation for India. So that's why Bhakti emerged. And gradually we have seen the prominent saint in Bhakti. Like Kabir, Tulsi, Meera, नानक, चैतन्य, रविदास, रैदास, विट्ठलनाथ, एकनाथ, तुकाराम. There are so many names in these traditions. Mirabai also very famous. Bhakti is a medium to interact with God without any agitation. It based on devotion and dedication. It based on love and affection towards God. Bhakti and Sufi, both are similar. And we have to discuss here the Sufism also. Sufism, I have already taught you in my previous video, that Sufism, that word, that is a very interesting word. Have you listened that word, Sufism? I hope, yes. You will say yes. But it is very strange matter with you and me also. When I have read that before 18th century, there is no word of Sufism for particular that tradition.
everywhere used in the text tasawwuf. They uses the word tasawwuf. Tasawwuf, there are so many disputes, there are so many confusions, misunderstanding about the actual meaning of Sufism. Historians believe that Sufism meant by particular word Saf, Sufa, Safa and Sophia. Suf, it means wool. Sufa, it means platform. Safa, it means purity, and Sophia, it means knowledge. I here want to discuss with you the meaning of that. The actual meaning, wool, it means वो लोग जो उनके कपड़े पहनते थे, लबादे पहनते थे, वो सूफी कहलाए. वो लोग जो इंटरनली काफ़ी सेक्रेट्स थे, गॉड से इंटरेक्ट होना चाहते थे, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी मीडिएटर, सूफी कहे. वो लोग जो मक्का के किनारे जो प्लेटफॉर्म्स थे उस पर बैठे रहते थे, अपने को गार्ड से हमेशा भगवान में अपने को लीन रखते थे, सूफी कहलाए. एंड लास्ट फोर द सोफिया. सोफिया, दिस इज नॉट गिवन इन बुक, सो दैट्स व्हाई हियर सोफिया, इट मीन्स नॉलेज. I think Suf, Safa and Sufa. These were given in your book. There is no need to explain that word because this is already given in your book. Meaning is that only that word, Sophia. That word comes from the Greek. Sophia means knowledge. It feels to me. And historians also believe that Sophia, Greek जो फिलासफर्स थे, जो ग्रीक स्कॉलर्स थे, उनसे इफेक्ट होकर के एक वर्ग जो इस्लाम में लिबरल अप्रोच का था, लिबरल धड़े से था, वो इनसे अपने ज्ञान को एक नए तरीके से एक्सपेंड किया. ऐसे लोगों का ग्रुप ही सूफी कहलाए, सूफी सेंट कहलाए. इसीलिए इनको सोफिया से निकला हुआ माना जाता है. This is a very interesting. This is very curious matter with us. That why such type of people emerged in Islam. So I would like to explain that why. Because my dear student, every religions have सभी धर्म के दो तत्व होते हैं, एक एक्सटर्नल बाह्य पक्ष और एक इंटरनल आंतरिक पक्ष. बाह्य पक्ष इट मीन्स व्हाट थिंग्स शो, आप धर्म में किन चीज़ों को शो करते हैं. जैसे सपोज इन द वैदिक रिलीजन, इन सनातन धर्म, इन द हिंदू धर्म, आई क्लियरिफाई दैट देयर इज नो वर्ड एक्सप्लेन द हिंदू. हिंदू कोई शब्द नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है. हमेशा इसके लिए हिंदू धर्म को कॉमनली हम यूज करते हैं, बट नाउ इट इज़ वेरी क्या कहेंगे आप, इसको समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म कोई नहीं है. इसके लिए हमेशा वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म, सनातन धर्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. ऐसे ही मुस्लिम धर्म कोई धर्म नहीं है, कभी भी मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है. इट इज ऑल्सो एक्सप्लेन इन योर चैप्टर. व्हेन यू विल रीड दिस, देन यू कैन फाइंड इट दैट देयर इज नो मीनिंग ऑफ हिंदू, देयर इज नो मीनिंग ऑफ, आई मीन टू से मुस्लिम फॉर रिलीजन. बाद में धीरे धीरे इन लोगों ने इनको धर्म के रूप में ले लिया. मुस्लिम्स को पर्टिकुलर प्लेस के नाम पे, स्थान के नाम पे एक्सप्लेन किया गया. ठीक ऐसे इन चीजों को समझिए. रिलीजन के दो पक्ष हैं.
एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल वो पक्ष होता है जिसमें धर्म को दिखाया जाता है, धर्म को शो ऑफ किया जाता है। सपोज हम टीका लगाएं, हम कपड़े पहने, हम मूर्ति पूजा करें, हम मंदिर जाएं या हम मस्जिद जाएं, हम चर्च जाएं, गुरुद्वारे जाएं, हम रिचुअल प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट करें। दीज आर ऑल द एक्सटर्नल फीचर ऑफ द रिलीजन। द इंटरनल फीचर दैट इज द स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म। स्पिरिचुअलिज्म वो चीजें हैं जिनसे आध्यात्मिक रूप से लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, तर्क के आधार पे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे गॉड को एक्सप्लेन करते हैं। दैट इज द स्पिरिचुअल। इस्लाम जब धीरे धीरे बढ़ रहा था, ग्रेजुअली व्हेन इस्लाम expand the worldwide level, then it is a very important needs for them to क्या करना, धर्म को एक सही तरीके से एक्सप्लेन करना, लोगों के सामने तर्क के आधार पे अपनी बातों को प्रूव करना। उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया और यही चीजें धर्म के रिलीजियस परिस्थिति इंटरनल। सूफी बिलोंग टू दैट। सूफी सेंट इसी से बिलोंग करते थे। सूफी इंटरनल फीचर से, धर्म से बिलोंग करते थे। ठीक इसी तरीके से सूफिज्म का विकास हुआ। सूफिज्म में कई सारे शब्दों को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जैसे सिलसिला, लाइक खानकाह, लाइक पीर and Mursid, like Pir, Mursid and Qawwali. Silsila, this means chain. I have already discussed what is the meaning of silsila. Silsila तो मैंने बताया था। सिलसिला it means chain. ये चेन कनेक्ट हुई कहाँ से? ये चेन कनेक्ट हुई गॉड टू लास्ट फॉलोअर्स तक। ये चेन, ये सिलसिला अपने टीचर्स से अपने डिसाइपल्स के बीच कनेक्ट होगी। टीचर्स और उनके फॉलोअर्स, उनके डिसाइपल्स में धीरे धीरे कनेक्शंस, और ये कनेक्शंस निर्बाध गति से काफी दूर तक चला जाएगा। दैट इज सिलसिला, चेन। मतलब एक कड़ी से, एक ही चेन से टीचर अपने टीचर से, अपने टीचर से आगे आगे आगे, और वो प्रोफेट मोहम्मद तक पहुंच जाएगी, और वो द सॉवरेंटी गार्ड तक वो कनेक्ट हो जाएंगे। दैट इज सिलसिला। खानका पर्टिकुलर प्लेस वेयर द टीचर, द पीर, शेख वेयर लिव्ड, एंड पीर मीन्स टीचर, मुर्शीद इट मीन्स आल्सो टीचर, हियर द मुरीद और डिसाइपल्स इट मीन्स देयर फॉलोअर, उनके शिष्य। कव्वाली लाइक प्रेयर इन द सूफिज्म, कव्वाली प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्पेशली इन चिश्तिया सेक्ट। चिश्ती में इनका काफी लंबा योगदान है। इसके अलावा कुछ और वर्ड जैसे सिलसिला, खानका, पीर, मुरीद, कव्वाली, कुछ शब्द और हैं जिनके बारे में आप बात करें। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू इफ कंसीडर, देन आपको कुछ और शब्द भी मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपको समझने में, कुछ चीजों को जानने में। फुतूह, लंगर, खानकाह में फुतूह बिना मांगे हुए पैसे से चलने वाला लंगर। फुतूह मतलब बिना मांगा हुआ धन, वेल्थ, और लंगर इट मीन्स भोजन। यहाँ वो लोग जुड़ते थे, वो लोग कलेक्ट होते थे जो जिनको भोजन की तलाश थी, वो खानकाह पहुंचते थे। जो स्पिरिचुअल टीचर से किसी मिलने के लिए पहुंचते थे, जियारत करने पहुंचते थे। जियारत, द मीनिंग ऑफ जियारत दैट इज पिलग्रिमेज। जियारत का मतलब क्या होगा? जियारत इट मीन्स पिलग्रिमेज। जियारत की मीनिंग है पिलग्रिमेज। जो लोग दूर दराज के क्षेत्रों से सूफी से मिलने के लिए पहुंचते थे, जियारत करते थे। ये यहाँ जितने भी लोग पहुंचते, उनके खाने की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था, छोटे छोटे कमरे खानकाह में बने होते थे। खानकाह 2 मंजिले, कभी कभी 3-3 मंजिले की
3 स्टोरीज की बनी होती थी। ऊपरी मंजिले में टीचर रहता था और फिर टीचर के साथ उसका इंटरेक्शंस, टीचर बालकनी में आकर टीचर ऊपरी कमरे में बड़े बरामदे में बैठ के लोगों से इंटरेक्ट होता था, किन्हीं किन्हीं बातों पे चर्चाएं करता था, स्पिरिचुअल अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करता था, कभी कभी झगड़ों का निपटारा भी करता था। खानकाह का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। खानकाह वो शेल्टर प्लेस बन जाते थे कभी कभी जब एक बार मंगोलों ने अटैक किया, बड़े पैमाने में लोगों के हत्याएं होने के डर से बड़ी संख्या में लोग शेल्टर के लिए खानकाह पहुंचे। खानकाह धार्मिक प्लेस के रूप में था, टीचर का प्लेस था, इसलिए शेख का प्लेस था, सूफिसेंट का प्लेस था, इसलिए उस पर अटैक नहीं हुआ। तो इस रोल में भी खानकाह धीरे धीरे फेमस होने लगे। जियारत, फुतूह, सिलसिला, खानकाह, पीर, मुरीद, कव्वाली, सफ, सफा, सूफा एंड सूफिया, these are all we have explained today, and it is also discussed in my previous video. If you will read there, you can easily find the meaning of Sufism. In Sufism, two most important words also, that the word that is Basra and Besra. Basra and Besra. वहदत, उल वजूद एंड वहदत उल सुहूद, दो शब्द और जिससे बात कर ले, वहदत उल वहूद और वहदत उल सुहूद, बासरा एंड बेसरा. Basra, it means one who follow the Quran, Hadith, Iyaz and Qimma. इन चार चीज़ों शरीयत को, that is called शरीयत, इन चारों चीज़ों को अगर देख लें तो ये चीज़ें हमको शरीयत के समझ में. तो कहता है कि जो सेंट शरीयत को मानते थे वो बासरा कहते हैं, बासरा सेंट मत के थे. जो शरीयत की व्याख्या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर करके शरीयत के एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करते थे वो बेसरा कहते. इन दोनों में दो सेक्ट इंपॉर्टेंट है. बासरा में आप करें तो नक्शबंदी, सूरावर्दी और बेसरा में अगर बात करें तो यहां पे हमें मिल जाएंगे चिश्तिया. They explain Quran according to their own personal experience, their own spiritual knowledge. They explain what is the meaning of Besra and Basra. Here I have explained all the difficult words. Even these are all I have described in my previous video. If you will read, if you will see, then you can easily find all these. Alwars and Nanars. Alwars, it means the followers who follow Lord Vishnu, and Nanars who followed the Lord Shiva. The saint of the Alwars and Nanars, Alwars 12 and Nanars 63. तो इस तरीके से आज हमने उन सारी चीज़ों पे बात की जो इन सबको एक्सप्लेन करता है. अब थोड़ी चीज़ों पे भक्ति पे भी देखते हैं. अलवार्स नैनार्स, उन सारी डिफिकल्ट वर्ड्स पे हमने आज एक्सप्लेन करना है, बात करनी है. Okay, Alwars.
and Nainars. Alvars, Nainars. Lord Vishnu, and Lord Shiva. Saint 12, Saint 63. Text Alvar's text, Nainar text. Here that is the two texts which is very important. First, Nalayar Dibya Prabandhan. And second, Tevaram. Women devotee. Andal and Karaikal Amyar. In Sufism, you will see that Rabia she is women devotee. I think some words you have seen, कुछ शब्द दिखे आपको. आंडाल, कराईकल अमियार एंड राबिया. आंडाल अलवार से, कराईकल अमियार नैनार से एंड राबिया सूफीज्म से. इसके अलावा अगर बाद में देखें 16th सेंचुरी में तो एक और नाम आपको मिलेगा आंडाल की तरह, मीराबाई. ये सारी चीजें भक्ति में आप इनको जोड़ के देखें तो आपको इन सारी चीजों को एक एक कनेक्शन जुड़ने लगेगा. इन बातों को आपको समझ में आने लगेगा कि ये क्या है, क्यों है, और फिर उन चीजों को आप आराम से समझ सकते हैं. विमेन डिवोटी, दैट इज कराईकल अमियार, belongs to Shaiva traditions. Andal belongs to Vaishnava traditions. Rabia, she was women devotee, belongs to Sufism. And here I want to clarify you that not only men saint is famous in Sufism or Bhakti, women also play very important role. They walk shoulder to shoulder. वो भी उतना ही important रोल भक्ति में निभा रही थी जितना मेल थे. कुछ और नाम प्रोमिनेंट सेंट्स के नाम here I want to explain. कुछ नाम जैसे रामानंद, कबीर, रविदास, इन्हें रविदास भी कहा गया है. धन्ना, एकनाथ, तुकाराम. There are a lot of names. And Sankardev also I want to mention here. Sankardev, Chaitanya, these are some prominent bhakti saints which we have read. Nanak also. Mirabai. We have discussed Nanak, Mirabai and teaching of Kabir. हम इनके बारे में इस चैप्टर में इनकी टीचिंग के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे.
तो यहाँ से इन चीज़ों को हमने समझा, यहाँ से हमने इन चीज़ों को देखा। अगर टीचिंग की बात करें तो सभी भक्ति संत ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि समाज में सामाजिक एकरूपता, समरसता और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कोई रिचुअल प्रैक्टिसेस की कोई मीनिंग्स नहीं होनी चाहिए। भगवान सभी के लिए सुलभ है। दैट्स वाई भक्ति इज बेस्ड ऑन डिवोशन एंड डेडिकेशन टूवर्ड्स गॉड। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट वर्ड्स। एंड इन भक्ति आई हैव आल्सो डिस्कस्ड the two parts, Sagun Bhakti and Nirgun Bhakti. Sagun Bhakti it means with tribute and Nirgun Bhakti it means without tribute. The Bhakti divided into two parts, Sagun and Nirgun. दोनों पार्ट में बात करें तो निर्गुण भक्ति शाखा में नानक, कबीर और सगुण भक्ति शाखा में तुलसी, मीराबाई, सूरदास, रसखान, इस तरह के नाम आपको मिलेंगे। तो हमने इन चीज़ों को देखा। हम टीचिंग के बारे में बात करें तो कबीर की टीचिंग, नानक की टीचिंग और मीराबाई की टीचिंग। कबीर, चलिए कबीर पे बात करते हैं थोड़ी देर के लिए। फर्स्ट कबीर, सेकेंड नानक एंड थर्ड मीराबाई। देयर टीचिंग, क्या सिमिलरिटीज है सबकी टीचिंग में? टीचिंग थोड़ी थोड़ी अलग है, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन है। कुछ चीज़ें जो कॉमन है उन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा, बाकी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। कॉमन चीज़ें, फर्स्ट, ये सब में आप लिख सकते हैं। यू कैन राइट दीज पॉइंट्स इन ऑल द भक्ति सेंट्स टीचिंग्स व्हेन दिस क्वेश्चन अराइज इन बोर्ड एग्जाम। आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो सारे आप अपने वर्ड्स में और अच्छे शब्द में आप लिख सकते हैं। यू कैन एक्सप्लेन दिस वर्ड इन योर ओन वर्ड्स। दिस स्टेटमेंट विच आर here I am going to explain. First, protest and oppose. किन चीजों का? ए, कास्ट, क्लास, रेस, क्लैन, वर्ण, बी, सुपीरियरिटी, बिहाफ ऑफ बर्थ, सी, रिचुअल एंड एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस। एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस, वैदिक टेक्स्ट, पुराण एंड ऑल रिलीजियस बुक। बिलीव इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी,
Believe in Hindu-Muslim unity. Believe that no need to interact with God. No need of any mediator. They interact with God. They also believe that God is supreme authority. तो इस सारे पॉइंट्स हमने बात की वन बाय वन। देव इन तीनों की बात करें, कबीर, नानक और मीराबाई, स्पेशली कबीर और नानक की, तो इनकी टीचिंग्स में ये चीज़ें आपको कॉमन दिखेंगी। कॉमन क्या क्या है? ये सभी विरोध करते हैं, अपोज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, डिनाइड करते हैं किन चीज़ों की? कास्ट की, क्लास की, रेस की, क्लैन की, वन की, जाति के आधार पे आपके सुपरियरिटी, धर्म के आधार पे सुपरियरिटी, बर्थ के आधार पे सुपरियरिटी, आप ऊंच हैं वो नीच हैं, इन सारी चीज़ों की, डिस्क्रिमिनेशन की अगर एक शब्द में करें तो डिस्क्रिमिनेशन, ऑल टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज अपोज्ड बाय देम। सेकेंड, द सुपीरियरिटी बिहाफ ऑफ एनीथिंग। मैं धनी हूँ, मैं ऊंच हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं उदात्त हूँ, मैं ये हूँ, इस तरह की सारी सुपीरियरिटी को उन्होंने विरोध किया। थर्ड, रिचुअल एंड एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस, कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड, वैदिक कुरीतियाँ, इन सारी चीज़ों का विरोध किया। वैदिक टेक्स्ट, कुरान, रिलीजियस टेक्स्ट, इन सारी चीज़ों को विरोध कर रहे हैं। बिलीव इन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। द भक्ति बेस्ड the unity of the Hindu and Muslims, and believes in that there is no need to any mediator to interact with God. भगवान से जुड़ने के लिए किसी भी mediator की जरूरत नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पे ये कॉमन चीज़ें हैं, ये कॉमन फीचर्स हैं जिसको आप सब में डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं इनको ऑनलाइन वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा, यूट्यूब पे मैं डालूंगा उस चीज़ों को, इनकी पर्सनल बायोग्राफी को, तब आप उन चीज़ों को अलग से कर सकते हैं, अलग से इन सारे पॉइंट्स को एडजस्ट करके आप अपनी बातों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक चैप्टर आपके समझ में आ गया होगा। मैं 3 चीज़ों को इस चैप्टर में और जोड़ूंगा, इनके टीचिंग्स, इनकी लाइफ को, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगा। आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।